خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ کی نااہلی شہر میں چینی کی قلت سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ کریانہ فروشوں کی سرکاری ریٹ پر چینی کی فروخت سے معذرت، شہر میں 173 روپے فی کلو میں چینی دستیاب نہیں ہے۔ صدر کریانہ مرچنٹس لاہور طاہر سکلین بٹ کا کہنا تھا ہول سیل ڈیلر سے 180 روپے فی کلو میں چینی مل رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ سرکاری ریٹ کے مطابق چینی کی دستیابی کو یقینی نہیں بنا رہی۔ STN نمبر نہ ہونے کی وجہ سے کریانہ فروش ملوں سے براہ راست چینی نہیں لے سکتے۔ طاہر سکلین بٹ کا کہنا تھا ہول سیلرز اور ملز فرنٹ مین سے چینی سرکاری ریٹ پر مل نہیں رہی۔ تمام صورتحال سے کریانہ فروش اور صارفین پریشان ہیں۔ شہر بھر میں بیشتر کریانہ دکانوں پر چینی دستیاب نہیں ہے۔ دوسری جانب سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ شہری مہنگی سبزیاں خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آلو 80 کی بجائے 100 روپے، پیاز 45 کی بجائے 60 روپے کلو دستیاب ہیں، جبکہ لہسن، ادرک، ٹماٹر بھی 30 سے 50 روپے مہنگے داموں فروخت ہونے لگے ہیں۔ باقی سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ ادھر ماڈل کارٹس پر بھی لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ پھلوں اور سبزیوں پر 40 سے 50 روپے اضافی بٹورے جانے لگے ہیں، تو سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ لاہور میں CCD تھانوں کے مبینہ مقابلے سٹی 42 مارے گئے ملزمان کا ڈیٹا سامنے لے آیا۔ CCD تھانوں نے 22 اپریل سے 27 جولائی تک شہر میں 85 کے قریب مبینہ مقابلے کیے۔ مقابلوں کے دوران تمام اہلکار گاڑیاں محفوظ رہیں۔ CCD کے نہ رکنے والے پولیس مقابلے 85 ملزمان کو مار دیا گیا، مگر نہ کوئی اہلکار زخمی ہوا، نہ کسی گاڑی کو نقصان پہنچا۔ لاہور میں پہلا مبینہ مقابلہ 22 اپریل کو CCD کوتوالی نے کیا۔ ہدایت اللہ مارا گیا۔ 24 اپریل کو AVLS اقبال ٹاؤن کے ساتھ مقابلے میں اللہ رکھا مارا گیا۔ 26 اپریل کو AVLS اقبال ٹاؤن کے ساتھ مبینہ مقابلے میں آصف خان نامی ملزم مارا گیا۔ 27 اپریل کو 3 پولیس مقابلے چونگ میں شہزاد، نشتر میں ارشد اور کوتوالی نے اظہر ہلاک کیے۔ 28 اپریل کو محمد عمران کاہنہ اور صدر کے علاقہ میں عابد علی اور ظفر اقبال مبینہ مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ 30 اپریل کو کاہنہ کے علاقہ میں عرفان نامی ملزم مبینہ پولیس مقابلہ میں مارا گیا۔ 3 مئی کو ماڈل ٹاؤن کے ساتھ مبینہ مقابلے میں سیف علی نامی ملزم مارا گیا۔ 4 مئی کو کاہنہ میں عدیل اور AVLS اقبال ٹاؤن کے ساتھ مقابلے میں طاہر نامی ملزم ہلاک ہوئے۔ 7 مئی کو ہونے والے مبینہ مقابلے میں شیر خان کاہنہ کے علاقہ میں مارا گیا۔ 14 مئی کو 2 مقابلے ہوئے، زبیر اور محمد اکرم نشتر کے علاقہ میں ہلاک ہوئے۔ 16 مئی کو 2 مقابلوں میں محمد قاسم اور تسلیم عباس ہنجروال کے علاقہ میں مارے گئے۔ 18 مئی کو نشتر کے علاقہ میں 2 ملزمان شبیر احمد اور نواز نامی ملزمان مبینہ مقابلے میں مارے گئے۔ 20 مئی کو CCD سول لائنز نے طاہر شاہ نامی ملزم مبینہ مقابلے میں ہلاک کیا۔ 21 مئی کو رائیونڈ میں عامر شبیر جبکہ اقبال ٹاؤن میں شوکت نامی ملزم مبینہ مقابلے میں مارا گیا۔ 23 مئی کو سندر کے علاقہ میں مبینہ مقابلہ ہوا، نصیر نامی ملزم مارا گیا۔ 26 مئی کو 2، 27 مئی کو ماڈل ٹاؤن اور AVLS کے ساتھ مقابلہ میں ایک ملزم ہلاک۔ 29 مئی کو چونگ میں ننکانہ کے رہائشی ملزمان اللہ رکھا، نوید اور اکبر مارا گیا۔ 29 مئی کو صدر کے علاقہ میں بھی 3 ملزمان مبینہ مقابلے میں مارے گئے۔ 29 مئی کو ہی کاہنہ کے علاقہ میں شیر نامی ملزم ماڈل ٹاؤن کے ساتھ مقابلہ میں ہلاک ہوا۔ 31 مئی کو کاہنہ میں ہونے والے پولیس مقابلہ میں محمد آصف نامی ملزم مارا گیا۔ 1 جون کو کاہنہ کے علاقہ میں عثمان بٹ نامی ملزم مبینہ مقابلے میں مارا گیا۔ 2 جون کو ٹاؤن شپ میں 1 ملزم مارا گیا، جبکہ کاہنہ میں اسلم شاہ بھی پولیس مقابلے میں ہلاک ہوا۔ 3 جون کو چونگ میں ناظم شاہ نامی ملزم مبینہ مقابلے میں مارا گیا۔ 14 جون کو ہونے والے مبینہ مقابلے میں ناصر اقبال ڈوگر کاہنہ میں مارا گیا۔ 20 جون کو 2 ملزمان اصغر اور طارق ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے ہاتھوں مارے گئے۔ 21 جون کو ہیر کے علاقہ میں وقاص مسیح، علی رضا AVLS اقبال ٹاؤن کے ہاتھوں مارے گئے۔ 22 جون کو ساندہ میں CCD اقبال ٹاؤن کے ساتھ مبینہ مقابلے میں علی حیدر نامی ملزم مارا گیا۔ 28 جون کو 2 ملزمان نشتر کے علاقہ میں ماڈل ٹاؤن کے ساتھ مبینہ مقابلے میں مارے گئے۔ مبینہ مقابلے میں مارے گئے ملزمان شاہ گینگ فیصل آباد کے حماد شاہ اور نالین شاہ تھے۔ 30 جون کو اسلام پورہ پولیس مقابلے میں 2 ملزمان لودھرا کا عاصم اور وہاڑی کا کیسر مارا گیا۔ 2 جولائی کو باپ بیٹا فضل الرحمان اور امیر عباس کاہنہ جبکہ طاہر نامی ملزم شاہدرہ میں مار دیے گئے۔ 3 جولائی کو CCD کینٹ پولیس مقابلہ میں حسنین، سول لائنز کے ساتھ مقابلے میں دلاور اور عابد مارے گئے۔ 4 جولائی کو کاہنہ مبینہ پولیس مقابلہ میں محمد شبیر اور کوتوالی کے ساتھ مقابلہ میں نوریز بٹ اور محسن ہلاک۔
5 जुलाई को इकबाल टाउन के साथ होने वाले मुबैना मुकाबले में मोहम्मद शहजाद नामी मुलजिम मारा गया। 8 जुलाई को मोहम्मद खालिद सीसीडी मॉडल टाउन के साथ होने वाले मुबैना मुकाबले में मारा गया। 10 जुलाई को इस्लामपुरा में नसीब शाहदरा में शहजाद नामी मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। 11 जुलाई को नवाब टाउन के इलाका में मुबैना पुलिस मुकाबले में मोहम्मद कासिम नामी मुलजिम मारा गया। 12 जुलाई को 2 मुलजिमान काहना में रुहेल मसीह, शादबाग में दिलशाद मुबैना मुकाबले में मारा गया। 14 जुलाई को बादामी बाग में होने वाले मुबैना मुकाबले में इरफान मसीह मारा गया। 18 जुलाई को नवाकोट में कासिम नामी मुलजिम मुबैना मुकाबले में पार लगा। 20 जुलाई को चुंग में 6 जबकि शाहदरा में सीसीडी कोतवाली के साथ मुकाबले में 1 मुलजिम मारा गया। 24 जुलाई को सदर के साथ मुकाबला में अनवर मलंगी, मॉडल टाउन के साथ मुकाबला में स्वाले मसीह मारा गया। 25 जुलाई को ओकाड़ा से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम मुश्ताक मॉडल टाउन के साथ मुकाबला में मारा गया। 26 जुलाई को इकबाल टाउन के साथ मुकाबला में अली अहमद, सिविल लाइंस मुबैना पुलिस मुकाबला में गुलाम दस्तगीर। 27 जुलाई को इकबाल टाउन में शेरा कोट में इम्तियाज, सब्जाजार में AVLS ने तनवीर मार दिया। CCD ने दावा किया कि मारे गए 85 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। जराए की जानिब से कंफर्म किया गया है कि मुबैना पुलिस मुकाबलों के मुतालिक FIA ने ताहाल कोई तफ्तीशी इक़दामात नहीं उठाए। पुलिस हिरासत में तशद्दुद और हलाक मुलजिमान की तफ्तीश FIA के सुपुर्द है। फारान यामीन, सिटी 42। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में अपीलों की समाअत 11 शोकॉज नोटिस का फैसला बद इंतजामी पर 8 अहलकार नौकरी से बरतरफ, 3 को हतमी वार्निंग जारी कर दी गई। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में DIG ऑपरेशंस ने अपीलों की समाअत की। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने बद इंतजामी पर 8 अहलकार नौकरी से बरतरफ कर दिए, 3 को हतमी वार्निंग दे दी। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि लाहौर पुलिस में नज़्म व ज़ब्त पर कोई समझौता नहीं, करप्शन, गफलत या बदतमीजी किसी भी सतह पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर फौरी महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाती है। महकमा हाउसिंग पंजाब का सस्ते और काबिल इस्तेतात रिहायशी मनसूबों बारे बड़ा फैसला। सहूलियात से आरास्ता सस्ते रिहायशी मौके पैदा करने बारे कानून साजी पर काम शुरू कर दिया गया। सूबे भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के कानून और लीगल फ्रेमवर्क यकसा बनाए जाएंगे, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में सस्ते और काबिल खरीद घरों की फराहमी की जाएगी। महकमा हाउसिंग के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों के लिए समाजी जिम्मेदारी पर मबनी कानून बनाए जाएंगे। हाउसिंग स्कीमें अपनी समाजी जिम्मेदारी पूरी करने की पाबंद होंगी। तर्जुमान के मुताबिक तमाम हाउसिंग स्कीमें कुछ फीसद इलाके सस्ते काबिल इस्तेतात घरों के लिए मुख्तस करेंगी। सस्ते और काबिल इस्तेतात घरों को तमाम ज़रूरी सहूलियात के करीब और रहने के काबिल रखा जाएगा। अमल दरामद से कबल लीगल फ्रेमवर्क और कानून साजी मुकम्मल की जाएगी। कानून का इतलाक तमाम ज़िले डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, रूडा, पाटा और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पर होगा। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का UC 78 गुलशन रावी का दौरा। मोहम्मद अवैस नवीद ने चेयरमैन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे के मौके पर चेयरमैन आमिर शाह, सदर शेख समी, मलिक ज़ीशान, सैयद इमरान शाह, मोहम्मद जैन नवीद भी हमरा थे। मोहम्मद उसामा फारूक, प्रोफेसर अहमद कुरैशी, राना साकिब, नुमान थामनी, शेख आसिम, हाजी इशफाक, TMO चौधरी शबीर भी मौजूद थे। अहले हल्का ने जारी तरक्याती कामों पर चेयरमैन राना मशहूद का शुक्रिया अदा किया। की तरक्की से लेके मुल्क की तरक्की, ये हमारा हमेशा मिशन रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान को नाकाम करने के लिए हिंदू और यहूदी लॉबी हर तरह की कोशिशें करती रही। पाकिस्तानी फौज जो जवां मर्दी से लड़ रही थी, जिसने इंडिया को नाको चने चुभवाए, वक्त आ गया है पाकिस्तान दुश्मनों का एहतसाब करने का, पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतों का खात्मा करने का। ये जो 129 का इलेक्शन है, मैंने हमेशा डिसिप्लिन की पाबंदी की है। अपने कायदीन के हुक्म पर जो उन्होंने हुक्म दिया है उसके ऊपर सरे खम किया है। इंशाअल्लाह ताला अब भी जो फैसला होगा वो पाकिस्तान के मुफाद में होगा, इलाके के मुफाद में होगा, अवाम के जज्बात की सही मानों में तर्जुमानी करते हुए होगा।
उधर शाहपुर कांजरा जमात इस्लामी PP 167 के ज़रिए इंतज़ाम मेंबर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम का कन्वेंशन से खिताब आपको भी सुनाते हैं। मेरे गांव में बिजली आएगी, बाद चो पता लगता है बिजली नहीं आती, बिजली दे बिल आते ने, और बिल भी कैसे जिदे नाल देख के लोग की बिल बिला उठते हैं। ऐलान बड़े वड्डे वड्डे असी धरना दिता, लोकी साढ़े नाल टुरे, इस्लामाबाद असी पिछली गर्मियां गुजारियां, असी सारा कुछ किया, हुकूमत नूं कमेटियां बनाइयां, बैठ के फैसले होए कि असी जनाब ये जेड़े बिजली दे बड़े बड़े IPPs ने इन्हां नाल मुज़ाकरात करके बिजली सस्ती करांगे। वर्ल्ड बैंक और IMF सानू इजाजत नहीं दिंदा, असी कहा ठीक है जो तुहानू इजाजत नहीं दिंदा ते असी भी फिर इत्थों नहीं जावांगे। असी फिर तय किया कि तुसी वर्ल्ड बैंक और IMF और इन्हां सरमायादारां तो इस मुल्क और कौम दे लोगों को निजात दिलाओ। आ गए, लो जी बड़े वड्डे वड्डे ऐलान हो गए कि असी जनाब बिजली दी कीमतां घटा दित्तियां, करोड़ों रुपए उन्हें इश्तिहारां च ला दिते, लेकिन नतीजा की निकलिया? नतीजा जिहड़ा वे निकलिया कि जिन्ने ऐलान कीते सी वो 25-30% उन्होंने रियायत की गई, और जिहड़े गरीब लोग सी 200 यूनिट उन्होंने बिल्कुल ही कोई रियायत। सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी रिजवान जट ने मरकजी दफ्तर PP 158 लिद्धड़ में खुली कचहरी का इनेकाद किया। हल्के के अवाम के मसाइल सुने और जल्द मसाइल के हल का वादा किया। सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी रिजवान जट ने खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 158 लिद्धड़ में किया गया। मलिक अफजल, मलिक फरियाद, हाज इकबाल, यासिर म्यो, अजीम अवान समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। सालीन ने सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। चौधरी रिजवान जट ने जल्द मसाइल के हल का वादा किया। तरक्याती काम मुकम्मल होने पर हल्के के अवाम ने मिठाई खिलाई, इजहार तशक्कुर भी किया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सैयद शमसाम अली बुखारी और सदर IPP पंजाब राना नज़ीर अहमद खान की मुलाकात तंजीम साजी को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में तमाम ज़िले और डिवीजन की सतह पर अहदेदारों को मुताबिक टास्क सौंपने पर भी गौर किया गया। सैयद शमसाम बुखारी का कहना था मुल्क भर में तंजीम साजी के जरिए इंतजामी ढांचे को मजबूत करेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की क़यादत में पार्टी बेहतरीन काम कर रही है। राना नज़ीर अहमद खान ने कहा कि तमाम इस्लामी वर्कर्स का डाटा ऑनलाइन कर रहे हैं। एक से दूसरी सियासी जमात में शमूलियत का सिलसिला जारी है। गुलबर्ग में ANP की जानिब से पुरवकार शमूलियती तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतादिद कारकुनान ने अवामी नेशनल पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है। शमूलियती तकरीब का एहतमाम नुमान खान मोहम्मद ने किया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान होती थे। उनके हमरा सूबाई सलार आला यूनुस खान, सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी कारी शबीर, ज़िले सदर लाहौर निसार खान और दीगर सूबाई और मकामी रहनुमा भी शरीक थे। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर बहादुर खान होती ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी एक जमहूरी, तरक्की पसंद और अवाम दोस्त सियासी जमात है जो हमेशा आमरीत, इंतहा पसंदी और जुल्म के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनी रही है। आज जो अफराद ANP में शामिल हुए हैं वो ना सिर्फ पार्टी की ताकत हैं बल्कि अपने इलाकों में हकीकी अवामी खिदमत की नई मिसालें भी कायम करेंगे। KCTO का रिक्शा चलाने वाली बाहिम्मत खातून को खराज तहसीन कानून की पासदारी करने वाले शहरी का सर्टिफिकेट हौसला अफजाई के लिए नक़द इनाम भी दिया। बाहिम्मत खातून शहर को CTO अता वहीद ने गुज़श्ता रोज़ शहर की सड़कों पर रिक्शा चलाते हुए देखा। शहर अपने घर वालों की वाहिद कफील हैं और रिक्शा चलाकर मेहनत की कमाई से अपने अहले खाना का पेट पाल रही हैं। CTO लाहौर ने शहर के बुलंद हौसले और हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया और अपने दफ्तर बुलाकर सर्टिफिकेट और नक़द इनाम भी दिया। CTO के मुताबिक शहर गुज़श्ता 2 साल से शहर की सड़कों पर रिक्शा चलाकर रोज़ी कमा रही है। मुआशरे की तमाम खातीन के लिए शहर का बुलंद हौसला और उनकी हिम्मत मशअले राह है। पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर के ज़रिए तमाम 115वें एडिशन की फर्नीचर नुमाइश खत्म हो गई है। फर्नीचर की 100 से ज़्यादा कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। इख्तितामी रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद फर्नीचर खरीदने पहुंची।
पाइन एवेन्यू रोड पर पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर की जानिब से 3 रोजा एक्सपो का आखिरी रोज। नुमाइश में 100 से जायद फर्नीचर कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। नित नए डिजाइन के फर्नीचर्स और सोफा सेट शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। नुमाइश में बेड्स, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल्स, डोर मैट, सोफा बीन्स और सवात की लकड़ी से तैयार करदा हैंडी क्राफ्ट्स डिस्प्ले किए गए। स्टॉल होल्डर्स कहते हैं कि एक्सपो में सारिफीन को तीनों रोज 40% तक रियायत दी गई। कारोबार करने का मौका मिला है। हमने इधर एक्सपो में अपना स्टॉल लगाया है और बहुत अच्छा फीडबैक है हमारे कस्टमर्स का। कस्टमर्स ने आके हमारे प्रोडक्ट्स देखे, काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है। हमारे पास हर तरह के बीन बैग्स हैं और हम लोग ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लाहौर में ही, और उसके अलावा हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर भी कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स में है डाइनिंग टेबल्स, बेड्स, सेटिंग्स और जो ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह है कस्टमाइज़ भी कर देते हैं हम लोग, और 3 दिन से इस एक्सपो का पार्ट है। हम लोग के ब्रांड्स में बेड, डाइनिंग टेबल्स और सोफ़ाज़ हैं, और हम लोग 3 दिन से यहाँ पाइन एवेन्यू में फर्नीचर एक्सपो के लिए आए हैं, मतलब फर्नीचर एग्जीबिशन के लिए आए हैं, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। शहरियों का कहना था कि मुख्तलिफ इकसाम का मयारी फर्नीचर देखने को मिला है और रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं। क्वालिटी का हिसाब से ही प्राइसेस दे रहे हैं, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट वो लोग डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। तो अब अगर आप एग्जीबिशन पर आते हैं तो आपको एग्जीबिशन पर आने का ये फ़ायदा है कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस, अच्छी चीज़ जो आपको बाद लाइक 2-3 लाख रुपए में रही, यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए में मिल रही है। ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी सेटिस्फाइंग है सारी प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हमने और भी फर्नीचर मार्केट्स चेक किए हैं। हम लोग स्पेसिफिक कुछ फर्नीचर देख रहे थे घर का, तो यहाँ पे जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है, और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है हर चीज़ को, तो आपको मुश्किल नहीं होती ढूंढने में। फर्नीचर नुमाइश को डायमंड सुप्रीम फॉर्म ने स्पॉन्सर किया। इस मौके पे फर्नीचर कॉर्नर, गाबा होम्स, होम डेकोर, सोहा इंटीरियर्स, पिशावर वुडलैंड और विस्टा होम समेत दीगर कंपनियों ने फर्नीचर्स डिस्प्ले किए। न्यूज़ बुलेटिन से फल वक्त इतना।